हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट कॉमर्स हब। आप सभी का स्वागत है स्टैंडर्ड 12th के इस रिवीजन सीरीज में। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है वेयर टू और मोर पर्सन come together to do a business and share profits and losses of that business. पार्टनरशिप में पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, अपना स्किल, नॉलेज और उस बिजनेस को कैरी करके दे अर्न प्रॉफिट्स एंड शेयर अमंग्स देम. In case of partnership, liability of all the partners is joint, several and unlimited. Features of partnership. First, two or more person. To enter into partnership, there must be minimum 2 person and as per Companies Act 2013, the maximum limit of partners in a partnership firm is 50. Agreement based relationship. There must be an agreement between the partners. That means सारे पार्टनर्स ने सारे पार्टनरशिप के कंडीशंस को एक्सेप्ट करना जरूरी है. So there must be mutual agreement between partners. Agreement can be oral or written, but written agreement is preferable so that it can be used as tool in court of law in future. Also, registration of partnership is voluntary, but in state of Maharashtra, it is compulsory to register the partnership. The written agreement is called as partnership deed. Next feature is profit sharing. Partners share profit or losses of the firm amongst themselves in a pre-decided ratio, जिसे कहा जाता है profit sharing ratio. Next feature is mutual agency. That means all partners can act on behalf of other partners as well as firm. That means each and every partner is agent as well as principal for other partners and firm. अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कोई डिसीजन लेता है so that decision is bound on all other partners as well as firm. Unlimited liability. The liability of partners is joint, several and unlimited. That means अगर फर्म की कोई लाइबिलिटी अराइज होती है, फर्म रीपे नहीं कर पाती, तो सारे पार्टनर्स अपने प्राइवेट असेट्स सेल आउट करके उस लाइबिलिटी को रीपे करेंगे. अगर किसी अदर पार्टनर की वजह से लाइबिलिटी अराइज हो रही है और वो पे नहीं कर पा रहा है, तो उस पार्टनर के अलावा बचे हुए पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल टू रीपे दैट लाइबिलिटी. But all these liabilities must be in relation to firm. Next is lawful business. A partnership firm must carry a lawful business. That means अगर आप एक लीगल बिजनेस कर रहे हो तो ही आपको एज अ पार्टनरशिप रिकॉग्निशन मिलेगा. ये सारे फीचर्स एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जा चुके हैं, सो इन फीचर्स को प्रॉपरली जरूर प्रिपेयर कीजिएगा. Next point is partnership deed. A written agreement between partners is called as partnership deed. अब इस partnership deed में क्या क्या contents होंगे? तो the major contents are name of the firm, address of the firm, name and address of all the partners, profit sharing ratio, capital contribution, salary, interest, remuneration payable to the partners if any, duties and responsibilities of the partners, admission and retirement के rules as well as फर्म के डिसोल्यूशन का प्रोसेस. अगर एक प्रॉपरली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड है तो फर्म का वर्किंग स्मूथ होगा और पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कि अगर डीड साइलेंट है, दैट मींस इफ डीड इज एब्सेंट, then and then only ये provisions applicable होंगे. The first is profit sharing ratio. If deed does not specify the profit sharing ratio between the partners, then partners will share profits and losses equally. If deed does not provide for interest on capital to the partners or interest on drawings, then partners will not get any interest on capital or will not pay any interest on drawings. Also, if the deed is silent about salary or commission payable to partner, then
partner will not get any salary or commission. On the other hand, if partnership deed does not specify the percentage of interest payable on loan from partner, अगर पार्टनर से फर्म ने कोई लोन ले रखा है और उस पर कितने परसेंट से इंटरेस्ट देना है ये डीड में नहीं बताया है, तो इंटरेस्ट पेएबल विल बी 6% पर एनम। ये सारे एडजस्टमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हुए इन सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स। A partnership firm can maintain capital accounts by two different methods. First is fixed capital method and second one is fluctuating capital method. In fixed capital method, capital balances को constant रखा जाता है, कैपिटल बैलेंसेस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता और एक और अकाउंट ओपन किया जाता है विच इज कॉल्ड एज पार्टनर्स करंट अकाउंट, and all the adjustments related to partners like interest on capital, interest on drawings, salary, remuneration, etc. ये सारे adjustments किए जाते हैं through partners current account. The another method is fluctuating capital method. In this method, all the adjustments related to partners are done through single account which is partners capital account. ये था हमारे पार्टनरशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थियरी पार्ट। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। While making partnership final accounts, we majorly make trading account, profit and loss account, partners capital account and balance sheet. So let us revise some extremely important adjustments. First, closing stock. So closing stock की cost और market value whichever is lower हम लोग दिखाएंगे trading account credit and asset side of balance sheet. While writing in asset side, you have to use stock in hand or stock in trade. Next, outstanding expenses means current year के expenses which are still payable. Effects, add to that particular expense in trading debit or profit and loss debit and liability side of balance sheet. Prepaid expenses minus from that particular expense either in trading debit or profit and loss debit and asset side prepaid expense. Next, income received in advance or pre-received income. That means हमारा income जो actually current year का नहीं है but advance में मिल चुका है. Effects, minus from that particular income profit and loss account credit and next is income receivable. That means current year's income which is still receivable. Effects, profit and loss account credit उस particular income में add and asset side of balance sheet. Now we will revise the set of adjustments on debtors. First is bad debts. Debtors में से minus profit and loss debit. Provision for bad debts or RDD or RBDD, that means reserve for bad and doubtful debts. Debtors में से minus profit and loss debit. Next is provision for discount on debtors. This also minus from debtors and profit and loss debit. लेकिन इन एडजस्टमेंट्स को करते हुए आपको कुछ सीरियल फॉलो करना जरूरी है। जैसे डेटर्स में आप सबसे पहले करोगे अनरिकॉर्डेड सेल्स और बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का एडजस्टमेंट। आफ्टर दैट फ्रॉम टोटल डेटर्स आप बैड डेट्स को माइनस कर दोगे। बैड डेट्स माइनस करने के बाद में जो बचेगा उस पर आप आरडीडी कैलकुलेट करोगे। आफ्टर डिडक्टिंग आरडीडी जो बच जाएगा उस पर आप रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। इफेक्ट्स, माइनस फ्रॉम क्रेडिटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ दैट एसेट, सो उस पर्टिकुलर एसेट में से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। Next adjustments are on partners capital account. First is interest on capital.
कैपिटल पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे बाय द गिवन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज अगर आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दी गई है तो यू विल ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर 6 months। इफेक्ट्स, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज सैलरी और रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर। कमीशन जनरली आपको एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पूछा जाता है। इफेक्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, इंटरेस्ट का अगर परसेंटेज स्पेसिफाइड नहीं है तो यू हैव टू कैलकुलेट इट एट 6% पर एनम। इफेक्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड लाइबिलिटी साइड में लोन फ्रॉम पार्टनर में ऐड हो जाएगा एज इंटरेस्ट पेएबल। नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटी एक्सेट्रा। इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड profit and loss account debit by the name of loss by fire or loss by theft, etc. Goods distributed as free samples, trading credit by goods distributed as free sample and profit and loss debit to advertisement. Next, goods withdrawn by partner for personal use, that means drawings in kind. Effects, trading credit, buy goods withdrawn for personal use and partners capital or current account debit to drawings. Unrecorded purchases, trading debit purchases में add and liability side creditors में add. Unrecorded sales, trading credit sales में add and asset debtors में add. Next adjustment is bill receivable dishonored. Bills receivable में से minus, debtors में add. Bills payable dishonored, bills payable में से minus, creditors में add. Next is deferred expenditure. For example, आपको क्वेश्चन में दिया गया है advertisement paid for 4 years, rupees 20,000. So 20,000 का advertisement pay हुआ है for 4 years. We will divide 20,000 by 4, तो हमें 1 साल का एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, दैट इज रुपीज 5,000, जो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और बैलेंस 15,000 विल बी शोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एज प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। इन एडजस्टमेंट के साथ कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स भी होती है जो ट्रायल बैलेंस में इटसेल्फ है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है पेड एडवर्टीजमेंट और नीचे ब्रैकेट में फॉर 4 years, तो सेम इफेक्ट्स एज वी रिवाइज्ड बिफोर। रेंट पेड फॉर 11 months, तो 1 month का रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट में एड एंड लाइबिलिटी। रेंट रिसीव्ड फॉर 10 months मींस 2 months का रेंट स्टिल रिसीवेबल। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, रेंट में एड एंड असेट एज रेंट रिसीवेबल। इसी के साथ इन ट्रायल बैलेंस इट मे बी गिवन एज 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दैट मींस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज रिसीवेबल एट 10%। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का या इन्वेस्टमेंट का जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको 10% कैलकुलेट करना है, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में ऐड कर देना है और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना है। इसी तरह आपको 10% लोन भी पूछा जा सकता है, तो इंटरेस्ट पेएबल दिखेगा। अगर आपको लोन लेने की या इन्वेस्टमेंट की डेट दी गई है तो फिर आपको उस पर्टिकुलर डेट से 31 मार्च तक पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा और उतने पीरियड का इंटरेस्ट आइदर पेएबल और रिसीवेबल दिखाना होगा। इन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त स्टूडेंट्स ने याद रखने जरूरी है। फर्स्ट, मेक ऑल फॉर्मेट्स प्रॉपरली, गिव प्रॉपर हेडिंग्स। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डेबिट, राइट हैंड कॉर्नर में क्रेडिट से लेके सारे फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स प्लीज कंप्लीट कीजिए। सेकेंडली, in case of closing stock you have to follow the rule cost or market price whichever is lower. Thirdly, आपके ट्रायल बैलेंस में कई बार ट्रेड एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं,
तो अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ ट्रायल बैलेंस में इटसेल्फ सन्ड्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इनमें से कोई और अकाउंटेड अवेलेबल है तो you will show trade expense in trading debit and the another one will be shown in profit and loss debit. Next, you have to be extremely careful कि ट्रायल बैलेंस के हर आइटम का एक इफेक्ट जाएगा एंड हर एडजस्टमेंट का इट मे बी हिडन, इट मे बी एक्सप्रेस, कम से कम 2 इफेक्ट जाएंगे। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होता है प्रोविडेंट फंड के बारे में। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविडेंट फंड दिया गया है तो इट विल बी शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बोला है तो लाइबिलिटी साइड में जो प्रोविडेंट फंड दिखाया है उसमें वो ऐड हो जाएगा, और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अगर बोला है तो इट विल बी शोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. So friends, in this revision video, I have covered all the important theory points as well as all the most important adjustments from this chapter. इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे वी विल रिवाइज आवर चैप्टर नंबर 2 दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।